धरती दे वल तेरे वधदे कदम पावन धरती दे वल तेरे वधदे कदम तेरे जीवन दे बंदेरा खोलणगे रब दी बरकत दे नाल उजड़े खिल जाणगे सुते पाग तेरे जाग तैनू डोलणगे पावन धरती दे वल मंगी दुआ पूरी हो जावेगी वगदी हनेरी भी खलो जावेगी मंगी दुआ पूरी हो जावेगी वगदी हनेरी भी खलो जावेगी फिर ना होवेगा डर ना ही कोई फिकर खंभ आत्मा दे तेरे उत्ते डोलने रब दी बरकत दे नाल उजड़े खिल जाणगे सुते पाग तेरे जाग तैनू डोलने पावन धरती दे वल तेरे वधदे कदम तेरे जीवन दे बंदेरा खोलणे पावन धरती दे वल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 700 ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ। 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਓਸੀਸ ਦੇ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਮੌਨਸੀਨੀਅਰ ਮੈਥਿਊ ਕੁਕੰਡਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਓਸੀਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਮੌਨਸੀਨੀਅਰ ਮੈਥਿਊ ਕੁਕੰਡਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ ਫਾਦਰ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1863 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1863 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚ ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਤਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਵਾਰ ਦਿਨ ਪਾਕ ਮਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਪਤਿਸਮ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖते ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1863 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1863 ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ 1863 ਅਕਤੂਬਰ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਉਧਰ, ਜਿੱਧਰ ਬਾਸਪਿਟਲ ਕੋਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਊਸ ਉਧਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਦਰ ਲੋਕ उसी में बसते रहे। उधर फादर उधर आके इधर बसते रहे। ये एरिया तो देखभाल करते तकरीबन 100-150 के ऊपर ये आसी अमृतसर जिले के एरिया के अमृतसर जिले नहीं है, अगर बियास तक सारे पिंडा में ये जाते रहे है रिकॉर्ड के मुताबिक। और इस तो बाद ये फादर लोग रहने तकरीबन ये फादर लोग इधर जानिया उन्हें चाहिए कि लोग इधर पढ़े लिखे लोग नहीं सी, उन्होंने स्कूल शुरू करने का निवेदन किया है। और वो फादर लोग इधर एक स्कूल पगले स्कूल उसे साल 1863 में एक स्कूल शुरू किया, उर्दू मीडियम स्कूल से, उर्दू मीडियम। और स्कूल चलते रहे। और 1963 तो बाद तकरीबन पार्टीशन तक ये फादर लोग ही ये एरिया देखभाल करते रहे है। और पार्टीशन तो बाद ये एरिया उस वक्त फिर ये बेल्जियम फादर चले गए वापस लाहौर विच। ये एरिया ब्रिटिश कैपिटल फादर लोगों ने सबको देता है। सो उन्होंने आके तो फादर पिंबार वो आके इधर पैरिश प्रीस्ट भी और स्कूल जो स्कूल चलता है वो स्कूल तो देखभाल करते रहे। उसका स्कूल से उर्दू मीडियम ਵਿੱਚੋਂ वो बदल के हिंदी मीडियम करता है।
हिंदी मीडियम कर दिया। नालों नाल एक अंग्रेज़ मीडियम स्कूल भी बनाया। ये इधर ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से पीछे उधर सेंट जोसेफ स्कूल हिंदी मीडियम से। और स्कूल सिर्फ जब स्कूल खोलिया है सिर्फ 14 बच्चे उस स्कूल के विच एडमिशन ले लिया। वो स्कूल उदों आगे बढ़ते 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 आगे चलते रहा। और इसको बाद इधर 1938 विच रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर तो ये सारे लाहौर बिशप के अधीन से 1938 विच लाहौर के बिशप दौरा किया इधर 1938। पहले इधर पारिश उधर फादर 2 फादर से उसका नाम उधर लिखा नहीं है। 2 फादर से फादर लोगों ने स्वागत किया इतना पाक मां से कुर्बानी चढ़ाया। और नालों ने उधर मच्छी नंगल पिंड दो एक चर्च बनाया। वो चर्च से बरकत भी देता है। वो सब ने वो जाके चर्च से बरकत किया है। वो तो पाक मां से कुर्बानी चढ़ाया। और दूसरे दिन उन्होंने चले गए जलंधर जो मौजूदा कथीड्रल है पुराना चर्च उधर ही से। वो चर्च उधर जाकर उधर दौरा किया है। उधर भी लोगों इस्तकलाल साकरण दिता पाक मां से कुर्बानी चढ़ा के दूसरे दिन वो तो फरवरी महीने में सी और पाक मां से कुर्बानी चढ़ाया। और वो तो इस्तकलाल साकरण भी लोगों दे देता है। और उस बाद उन्होंने अपने पगले विजिट दौरा किया संसार पिंड रिकॉर्ड के मुताबिक। और उधर लोग बिरसावन बहुत धूमधाम स्वागत किया है, हार पाया, बहुत खुश हो गए लोग। उन्होंने पाक मां से किया है। उसके बाद वापस इधर अमृतसर आए। अमृतसर तो चले गए लाहौर। सो ये रिकॉर्ड है बिरसावन का दौरा। इतने ये एक ही दौरे दोबारे रिकॉर्ड है। अब पार्टीशन तक उस बीच कोई आए कोई रिकॉर्ड में देखे नहीं है। और पार्टीशन के बाद क्या हो गया ये बेल्जियम बदल उधर लाहौर चले गए। और ब्रिटिश कॉपिजन फादर लोग फार पिम्बा चार्ज ले लिया। और इधर उस वक्त तो प्रीस्टोस फादर पिम्बा देन फादर अग्नेलस फादर एडमंड और इतने 3 फादर लोग से वो उधर प्रीस्टोस में रहे हैं। और ये एरिया था ये सारे एरिया अमृतसर जिले सारे एरिया वही तीनों फादर इधर भी। और चापड़ेन मस्जिद कॉन्वेंट के चापड़ेन भी तो ये लोग पारागिन से मेरे ख्याल है वो चापड़ेन से। सो ऐसे चलते हैं। बाप्तिस्म बहुत बाप्तिस्म देते वो लोग रिकॉर्ड में लिखे हैं काफ़ी बाप्तिस्म है। और एक गल यही है मैं देखने तो मन लगता है कुछ कर रही कि वो फादर लोग हर रोज़ का प्रोग्राम कितने कितने गया कितने लोगों को बाप्तिस्म देता है ये सारे और रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा गया है। पिलाल पिंड दौरा किया है और इतना बाप्तिस्म आया है ये सारे और रजिस्टर में लिखा है। अलग बाप्तिस्म का रिकॉर्ड बाप्तिस्म रजिस्टर में लिखा जो प्रोग्राम के बारे वो लॉग बुक जो हिस्ट्री इतिहास बुक है उनको क्रॉनिकल बुक उसमें लिखा है। सो ऐसे चलते रहे। और 1998 जो पार्टीशन हो गए पर उस वक्त तो ये याद रखना है ये डाइस नहीं बनाया। जलंधर उस वक्त आगरा डाइस का अधीन उसी आगरा के अधीन पार्टीशन तो बाद। पर उसके बाद फिर आगे दिल्ली डाइस शुरू हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली के अधीन ये एरिया पंजाब साइड दिल्ली डाइस के अधीन आ गया। उधर ये ब्रिटिश का पीछे फादर लोग मोर्चर आल्बन सॉब्रिक वो उस वक्त दिल्ली कैथेड्रल का पैरिश प्रीस्ट थे। उन्होंने ही वो कैथेड्रल बनाया है। आल्बन सॉब्रिक जो जिन्होंने हमारा प्रीफेक्ट अपोस्टोलिक बन के आया है उन्होंने ही दिल्ली कैथेड्रल बनाया। और उधर को फादर पर उसके बाद 1952 ये प्रीफेक्ट बनाया ये एरिया सारे। सो ये हमारे एरिया था इस एरिया का प्रीफेक्ट अपोस्टोलिक बन के आया। और ये फादर सारे इधर ही से। और फादर लॉरेंस इधर से उनको उन्होंने प्रीफेक्ट प्रो प्रीफेक्ट बनाया मतलब बीजी का पोजीशन उनको दिए है और रहते सीते हैं। सो इसी प्रकार फार पिम्बा 1961 में वापस चले गए उनको बुलाया इंग्लैंड वापस बुलाया वो चले गया। फिर फार तिमोथी आ गया इधर 1961 आके ये स्कूल तो जिम्मेवारी वो ले लिया। और उन्होंने क्या किया ये चर्च इधर पैरिश प्रीस्ट थी। और उन्होंने स्कूल उस वक्त उस स्कूल को सीनियर कैम्ब्रिज में अफिलिएट किया है। सीनियर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड का है और उसमें अफिलिएट किया।
और उस वक्त पहले बैच स्टूडेंट्स 10वीं में अपेयर हो गए सारे 100% पास। सो इसे पर फातिमती वो स्कूल तो देखभाल करते आ रहे हैं। और उधर से फिर क्या हो गया, तकरीबन 1972 ਵਿੱਚ जो मौजूद हमारा स्वर्गवासी बिशप सिम्फोरियन उन्होंने अभिषेक इधर ग्राउंड में फातिमती इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर फातिमती से। उस वक्त मैं भी फादर बन के इधर आया है। वो उसी मार्च 18 तारीख उनका मकसूद थे और मैं आया 15 मार्च को इधर आ गया सेमिनारी से पढ़ाई पूरा करके। सो वो उसका अभिषेक मैं भी मौजूद हैं। तो अभिषेक के फातिमती उनकी इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर है, और इसी ग्राउंड में वो है। मैं इधर है, वो समय तो मैं इधर है। बिशप साहब ने इधर अभिषेक के बाद मार्च से 22 तारीख को जलंधर पुराने कैथेड्रल में उनका गद्दीकरण होया। सो उन्होंने सबसे पहले मैनू अपॉइंट किया है डायस में। उनका पहले अपॉइंटमेंट मेरा ही था। मैंने इधर ये चर्च अमृतसर, ये अमृतसर सिटी छोड़ के बाकी बाहर का इलाका मुഴുവൻ सारे वो एरिया में 15 पारिश है अभी जो मैं देखते रहा है। वो एरिया में मैं साइकिल से जाते रहा। मैं मेरा इधर कोई काम नहीं, सिर्फ रहना ही वस्ते रहे बस, काम सारे मेरे बाहर। और 1975 में मैं तरनतारन स्कूल का आरंभ किया, शुरुआत किया। मैं 75 अगस्त महीने में 15 तारीख को मैं इधर से तरनतारन शिफ्ट कर दिया। इधर से मैं उधर चले गया और उधर 1980 तक उधर रहा। फिर वापस मैं इधर ही, उस वक्त तो बिशप साहब ने उधर हमारे डायस का माइनर सेमिनारी, डायस सेमिनारी नहीं था माइनर सेमिनारी, वो इधर आके उसका फर्स्ट डायरेक्टर मैं ही रहा। मैं इधर 5 साल इधर रहा। मेरे पारिश का मैं संबंध नहीं है, सिर्फ सेमिनारी की देखभाल करना था। सेमिनारी की देखभाल करते हुए मैं जानते रह जांडियाला वो ज़मीन मैंने के स्कूल की ज़मीन खरीदा है, वो तो पाकमस के लिए जानते रहा 84 तक। 84 मेरा ट्रांसफर इधर से जलंधर चले गया। सो इधर का इतिहास यही है। इतना एक मैंने पता है इधर। पर 84 उस वक्त फादर कुरियन अब हिम्मती चले गया 82 उन्हें वापस चले गया इंग्लैंड चले गया। फादर जोस पुतमरा स्कूल का प्रिंसिपल बने और उन्होंने वही इधर का पारिश प्रीस्ट भी हो रही है। जैसे मैं अभी इधर स्कूल का पारिश प्रीस्ट है और स्कूल का डायरेक्टर है ऐसे। और सेमिनारी में मैं 80 तो लेके 84 तक सेमिनारी में रेक्टर बन के रहा। सो मेरा अमृतसर का संबंध यही है। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। अमृतसर ये शागर्दी एरिया को छोड़ के अदनाल तहसील छोड़ के बाकी सारे एरिया अमृतसर जिला मेरे अधीन से। उधर अभी 15 पारिश है। अभी जो एरिया में देखभाल कर रहे उस वक्त अभी 15 पारिश है। इधर मस्जिदा ने लेके घूम के इधर अटारी खासा तक। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ 2021, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਈਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये सच्चे एक कोविड का समय है, जश्न धूमधाम मना नहीं सकता है, पर सानू ये कर सकते करना ही पैंदा है क्योंकि खुदा ने ये 50 साल के विच सानू बहुत बरकत देता है। जिन्होंने शुरू तो लेके जो इधर बसे है जो रहा, मैं आरंभ तो मैं इधर मैंने पता है। आप ये गल सुन के हैरान हो गए। अपने डाइस कितने रुपया तो शुरू किया बिशप सिम्फोरियन ने? 29,000 रुपया से। ये याद रखो, किसी को पता नहीं है बात। 29,000 रुपया पगला मीटिंग के बिशप साहब ने असी सिर्फ 15 में 14 फादर से लाइसेंस प्रीस्ट। उसके बाद 9 फादर लोग ब्रिटिश कपूचन फादर लोग से, 1-2 इंडियन कपूचन फादर लोग, सारे 24 फादर है। पहले मीटिंग में बिशप साहब ने सानू ये दसिया है। असी हैरान हो गए, बोलते तुम पता है असी मैं सानू किन्ने पैसा मिल गया, मैं किन्ने पैसा मोल्सन आलबन साहब ने देता है। सो पता नहीं। उन्होंने बांगे का पासपोर्ट दिखा बोला इधर लिखे 29,000 रुपया। इतने पैसे उन्होंने इनहेरिट किया है, उनका जायदाद ये मिला है।
वो 19,000 रुपया तो ये डायसिस इधर तक पहुंच गया। सो ये देख के असी खुदा ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ देयर इज नो क्वेश्चन that you should not thank God. We have to thank God. We have received so much अनगिनत बरकत मिले सानू। ਅਸੀਂ अंदर मेहनत ਕੀਤਾ है, खुदा ने नालों नानू बरकत भी देते रहे, इसलिए ये इधर पहुंच गया है, ना तो पहुंचना नहीं है। ये हिंदुस्तान तो कोई भी डाइस इतना जल्दी इतना आस्ती अर्थ वाक्य आस्ती देख लो। ईसाई इधर सिर्फ 8,000 कैथलिक हो गए, 8,000। जो तो बिशप सुमोरिन रिटायर हो गया, 1.5 लाख तो ऊपर कैथलिक है 50 साल के विच। और फादर लोग तकरीबन 80-90 तक पहुँच गया, डायसिस प्रीस्ट। और बाकी सारे दूसरा जमात का फादर लोग अलग, सिस्टर लोग भी थोड़ा ही से। डायसिस सिर्फ ये पारिश जलंधर, फिरोजपुर, डलहौसी, धारीवाल, मुक्तसर, इतने पारिश से अब वो बढ़ के 110 पारिश बन गया जब वो रिटायर हो गया। सो ये सब कुछ देख के असी धन्यवाद कोई बोलने की लोड़ ही नहीं है, किसी को पूछने की लोड़ है। प्रार्थना करते हैं ये जश्न ना मनाए, धन्यवाद देना है खुदा को। असी खुदा दे आगे धन्यवाद बन के रहना है। असी महामारी के सुभाष द्वारा ही मिलते रहे सानू। तुहानू पता है एक बात और सुनने वाली गल है, जदों जलंधर कैथीड्रल का बरकत होया, सारे हिंदुस्तान के बिशप साहिबान इन्वाइट किया है, कोई आने तैयार नहीं सी इधर। कोई उस वक्त तो 1999 टाइम में ये इतने क्या बोलते हैं जब टेररिज्म पूरा पंजाब तो फैल गया, कोई बिशप को इधर आने नहीं मांगते थे, इतने खतरनाक है। और क्या हो गया, रोम में संत पापा नुमाइंदे आए इधर, बिशप आर्च बिशप जो सांजस, उन्होंने अनाउंस किया ये चर्च महामारी शांति दरानी के समर्पित की, अनाउंस किया है। और क्या हुआ, वो समय तो लेके पंजाब शांति फैलाने लगे। ना तो रोज़ गोलियां चलाते रहे पिंडा में, कोई गिनती नहीं है, पता नहीं सी। वो समय धीरे 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 पंजाब की शांति का माहौल पैदा होया शांति। सो ये सारे महामारी की बरकत है। महामारी साढ़े लिए बहुत दुआ कर दे रही है। सुबह सुभाष द्वारा ही सानू ये सब कुछ हासिल कर सके है। ये डायसिस की उन्नति, लोगों के विश्वासों की गिनती और फादर की गिनती, स्टेशन की गिनती, सिस्टर साहिबान का मुनाद। जब वो डायसिस में सिर्फ 40 करीब बाबू लोग सन, और अभी कितने तकरीबन 200 बाबू लोग हैं। तो ये सारे देख के ऐसे कोई भी सुनेगा वो आप ही खुदा वाला दिल आएगा, खुदा याद करेगा। ये खुदा तो मेहरबानी ने अपने अपनी कोई नहीं बनाया, खुदा रहम किया है। सो बरकत साहब बहुत मिला है। पर इसलिए और ये इस करके धन्यवाद है। पर इसलिए अभी मैं क्या किया, जैसे अभी डायसिस में जुबली क्रॉस बनाया, उधर मीटिंग में मैं ये सलाह दिया था, हर एक डीनरी में एक क्रॉस बनाओ। अब वो क्रॉस और डीनरी के पारिशा में ले जाए, ये लोगों को जानकारी देनी चाहिए है। वो क्रॉस दे के क्रॉस किस वजह नाल बनाया, क्या ये मतलब क्या है, ये बोलनी चाहिए है। और उधर फादर लोग को किसी ने भी ध्यान एक ही क्रॉस बनाया। अभी वो क्रॉस मैं सुना उधर क्रॉस फिरोजपुर साइड में उधर जाकर फंस गया। इधर आना चाहिए महीने में, मई महीने से उधर आना चाहिए, आए नहीं है। सो मैं उस वक्त मैं बोला मैं अपना क्रॉस बनाना है, अपना पारिश ले। मैं क्रॉस बनाया, जिस दिन क्रॉस फिरोजपुर बरकत होया, उसी दिन मैं वो करके वो पाकों से इधर आ गया। इधर पाकों से कुरान चले लोग भी सी, उसी क्रॉस में मैं बरकत दे के कर में लेके जाते रहे। और बाद में कोरोना का दूजा लगर आगे निकले, लोग बहुत बीमार होने लगे। अभी रोकिया मैं, जाना ही जाना है, ये तो सुधर जाएगा। मैं कर वो सलीब क्रॉस जुबली क्रॉस लेके में जाना है। सो वो लेके लोगों को समझाया जाता है ये क्रॉस अपने डाइस से तो 50 साल तो उन्नति तरक्की का निशान है। खुदा ने धन्यवादी रूप में बनाए हुए सलीब है। सो उनको समझाया जाता है लोग ये जुबली इसे पर ऐसे मनाया चाहिए। आगे कोई धूमधाम ना मनाया जाए, ये काफ़ी है। लोग जाने का कटोकट खुदा ने धन्यवाद देगा अपने दिलों। ऐसे करो कि प्रार्थना करते हो, जुबली प्रार्थना पढ़ता है और करान बरकत देता है। ये सारे लोग इस सलीब पर सजदा करता है।
सारे लोग। सो ऐसे हम पारिश में ये मनाया जा रहा है। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿੰਫੋਰੀਅਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਦਾਂ ਦੀ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਜੋਸ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਗਿਰਜਾਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਦਰ ਮਾਰਟਿਨ ਸਾਦਿਕ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हम ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਇਤਨਾ देखने लायक नहीं है। ये बहुत पुराना चर्च है। मैं योजना बना रही था चर्च का कुछ रीमोल्डिंग करे, मतलब ये चर्च दे विस्तार करना, थोड़ा खुला करना है और वो जो अंदर जो पिलर से निकाल के वो हॉल को बड़ा करना है और उससे ऊपर बालकनी बना के तकरीबन 1000 लोगों को बैठने का जगह वो बनाना है। वो बाद से नक्शा बना के अपने कांड बोल, क्योंकि आर्मी एरिया में कैंटोनमेंट एरिया है, उनका परमिशन के बिना से कुछ नहीं कर सकता है, वो मंजूर देना पड़ता है। मैं 1998 में मैं उनको नक्शा बना कर दिया, अभी तक उसने पास करके नहीं दिया मुझे। मैं उनको कल भी मैं बात किया उससे, वो बोलते पार जो हो जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं है। सो वो बनाने का प्रोग्राम अगर परमिशन मिल गया, बिशप फ्रैंको मैं उनसे बात किया था, वो बोलने फार जैसे तुझे बनाओ तो मैं तुम्हारे नाल है। सो उन्होंने कहने पर मैं नक्शा बनाया और मेरा कि उधर पास करने वास्ते कांड बोर्ड में दिया है। वो फाइल अभी जलंधर डिफेंस स्टेट ऑफिस के साथ है। सो कल मैं पूछा था उनसे, वो बोलते हैं उधर अभी ये कोरोना के कारण उधर एक दो मौत हो गया, वो बोल रहे हैं मैं डी ऑफिस में, इस करके सारे फंसे बैठा है, अभी जल्दी पास करके वो बोलेगा दे देगा। सो मिलने के बाद देखेंगे कि हो सकता है, क्योंकि इधर चर्च सानू एक अच्छा चर्च जरूरी चाहिए है। यह अमृतसर शहर है जिसे सिखाते वो दरबार साहब है, हज़ार लखान के लोग होते हैं। हमारे पास देखना तो कुछ है नहीं इधर, हम भी इधर भी इतना पुराना चर्च है और देखने लायक चर्च बनाना जैसे कांजो में बनाया। मेरा कोशिश यही है, चाह यही है कि बन जाए, ताकि लोगों के सामने कुछ देखने वास्ते, प्रार्थना करने वास्ते। सो यही मेरा योजना। एक अनुभव मैं कर सकता हूँ, जो नए लोग हैं पिंडा में, नया परिवार सारे भी शामिल होया, वो सारे काबू रहता है। जो पुराने लोग हैं वो उन्हें काबू रखना इतना आसानी नहीं है। वो सोचते हैं कि मसान सब कुछ पता है, पुराने लोग हैं, असी क्यों ताबेदार बन के रहना है। ताबेदार ये नहीं है, ताबेदार नहीं है। जिससे मुझे ये रोड ले लिया पारिश है, लाइक तरनार बिक्योंड एरिया में मेरे लोग इतने, पर ये सारे पुराने बहुत पुराने लोग हैं। सो यहाँ ये सोचते कि यहाँ काबू रखना, कंट्रोल करना या चर्च के लाना इतना आसानी नहीं है, इतना आसानी नहीं है। अभी लोग फिर मैं इधर चेक करता हूँ कौन आते कौन नहीं आते। जो नहीं आए उसका अगले तो जब मैं देखा पूछा पीछे तो कोई चर्च क्यों नहीं आया। भाभी वो झूठ बोले सच बोले, मेरे पता आए नहीं है, पर झूठ बोलना ही है। आप देखे नहीं, मैं आया सी फादर जी, मैं बोलता आप आए नहीं, आपको देखे नहीं, मैं सबको देखे, मैं देखता हूँ इधर 1000 लोग आए, फिर भी बोलते फिलहाल परिवार नहीं आया, मैं चेक करता है। सो इनको तो पता नहीं, जलंधर चौड़ी में भी यही होता था।
एक अच्छा चरवाहा होने की भूमिका निभा रहे हैं आप। जैसे संत पापा ने क्या बोला है, द शेपर्ड शुड नो हाउ द स्मेल ऑफ द शीप। वो उनको जाननी चाहिए। सुनिए बोला, मैं अपने बेड़ा नहीं जानता, बेड़ मैंने जानता है। संत पापा ये किया है, शेपर्ड शुड हाउ द स्मेल ऑफ द शीप। बेड़ा का स्मेल अयालिया होने चाहिए। वो मतलब अर पक्के जानने चाहिए। सो मेरा कोशिश यही है, सबको चर्च लाया जाए। आते इधर तकरीबन सारे आ जाते। अब ये समय कोरोना समय सारे चर्च बंदे रखे। मैं बंदे नहीं गया। मैं चर्च में लोग पूछते पाकों से, मेंबर पाकों से, आना नहीं आना आपका मर्जी है। तो लोग आते रहे इधर। हर इतवार 150 लोग, दूसरे मास में घट्टो घट 150 तो ज़्यादा लोग आते हैं। फर्स्ट में तो 60-70 लोग फर्स्ट में होता है, अंग्रेज मास है। लोग आते रहे यार। जो भी पूछे मेरे पाकों से, आना नहीं आना आप सोचो, मैं किसी को बुलाई नहीं है। और जब आगे भीड़ देखे बोला, अपना कानून का पालन करो, दूर रखो, जो मास्क रखो। सो कानून का पालन करके चर्च में बैठो, प्रार्थना करो। सो थैंक यू वैरी मच फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। चंगा, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਨੂੰ। मौका मैंने मिला है, जाके मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकिया है, क्योंकि इधर इतिहास का तो किताबों में बहुत कुछ लिखा नहीं है। जो कुछ जानकारी मिले है तुम्हारे सामने पेश किया है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੀਨੀਅਰ ਮੈਥਿਊ ਕੁਕੰਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਨਸੀਨੀਅਰ ਮੈਥਿਊ ਕੁਕੰਡਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। पावन धरती देवल तेरे वधदे कदम, पावन धरती देवल तेरे वधदे कदम, तेरे जीवन दे बंदिरा खोलणगे रब दी बरकत दे दार। उजड़े खिल जाणगे, सुते पाग तेरे जाग तैनू टोलणगे। पावन धरती देवल